Good evening, everyone. This is your moderator of Ketiwala Dialogues, Dr. A.T. Kishore. Currently, I'm traveling in Vande Bharat and learning that Dr. Shobha Nagnur and team is doing fantastic on urban gardening. I thought of just wishing you all good luck. And as I know, Dr. Shobha ma'am, very passionate about gardening and right from university days and dean for the home sciences. I'm very sure that in her moderation and speakers like you will make this program grand success and deliver value to all the attendees and Ketiwala. Namaste, Ram Vilas ji, sir. हाँ जी, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? I'm fine, thank you, sir. First time I'm meeting you like this in person, and I am excited about it. Okay, ma'am. Thank you so much. I'm a great fan of your gardening. I'm also equally passionate as you are. As you all know, I'm Dr. Shobha Nagnur, and today they've asked me to moderate for this urban Krishi. And so here we are on the first dialogue on urban Krishi. Before we actually go and start listening to what Ram Vilas ji has to say, we will talk a little about what is urban Kheti. So, or what is Khetiwala. So Khetiwala is a kind of agri-tech app that is concerned with the welfare of the farmers, and they connect the farmers with the niveshaks or the investors. That's the main thing here, and they will give them guidance, financial assistance to access new agricultural technologies so that their efficiency increases, their production and productivity increases, and they have livelihood security and overall a better quality of life. That is what they are committed to, Khetiwala. So it is an all-in-one solution in that it connects the farmers with the investors, it connects the farmer to the farmer to the input suppliers. So all those connections will happen through this Khetiwala app, and they go about empowering the farmers or improving the quality of life of the farmers through various activities. And these are some of those activities. There are 8 activities. They have the Kheti Corner, Kheti Kendra, Kheti Kalyan, Kheti News, Agri News, Dialogue, and some awards. So such 8 things are there. We'll go through them one by one. So in the Kheti Corner, it is a seamless platform for farmers to sell their produce directly to the consumers. As we all know, there are always middlemen who are getting the major share of what is the profits. So here, Kheti Corner, the farmers and the buyers are connected. So it's a win-win solution for both of them, whereas farmers can get a better price and the buyers at a reasonable price they can get. Then this Kheti Kendra is set up at selected mandalas, probably in right now in Andhra Pradesh and all, where farmers, it's a one-stop solution in the sense farmers can get valuable insights on modern practices. So there will be scientists and they can get receive guidance on latest technologies about finances and where they can avail loans and such things. And even they can get the input services at Kheti Kendras. Kheti Kalyan is to do with empowering the farmers. As we all know, nearly 80% of the farmers are small landholders in our country, and they have low capacity of investment. So money is the major problem, and Kheti Kalyan aims at connecting the farmers with the investors or the niveshaks and bring both the farmers and the niveshaks at one stage. Then they have the Kheti Kalyan Agri News. This is a 24/7 news. It's there on the website. All news that is going on all around the country and in the world are put up there. In addition to the news, what we are having today, the dialogue, this one will be recorded and edited and put up there so that even if there are not many participants in the Zoom meeting right now, the others can take benefit of what has taken place here, or the insights that have been shared by the experts will be there on the websites for others to see. In addition, there is a monthly magazine called the Khetiwala magazine it is, where monthly magazine, they will publish articles of the new things that are happening. Recently, I also contributed one article on growing ornamental plants hydrophonically. Then there is this Kheti Puraskar, where people are awarded, their achievements are recognized, the best practices are recognized, and they are awarded. This motivates the farmer himself and the others also to take up. Then Kheti Summit is a place where all the people can come together. All the stakeholders, the farmers, students of agriculture and allied sciences,
the startups, the business people, they may be concerned with food and food processing units, or they may be the business organization with agricultural machinery, and all such people will come together. It may be even the input dealers that will come there. So they can all meet with one another, and most of all, the investors will also be there. So everybody can communicate with one another at the KT Summit. Then the KT Dialogue is what we are having today, that is discussing about Krishi. This is one of the dialogues. They have other dialogues too on agriculture. They are also there on every Friday, and I was a participant on KT Dialogue 16. So this is the first dialogue on urban Krishi. And these, as I said, will again be recorded and uploaded onto the YouTube. Then Kheti Kosha is again connecting those who own lands and are away from their lands. It may be within the country or outside the country, but they're still passionate, or they want to cultivate their lands. They don't want to sell away or dispose their lands. For them, Khetiwala selects these farmers, small farmers who are landless people who do not have enough land. So they are given on a lease basis to cultivate. So that way, even the owners get the pleasure of having grown something. So these are the 8 initiatives or 8 activities through which Khetiwala aims at empowering the. So these are about the activities, and I think my screen sharing has stopped for some reason. So I think with this introduction, we can now hand over the mic to Mr. Ram Vilas ji. So as I said, KT Dialogues are regular sessions. They are now being held in English and I think Telugu also. In Kannada, Marathi and all, they're all planning to have them in Tamil and Hindi also. And once these dialogues are done, they will be uploaded on the YouTube. So this magazine, I have spoken to you. They are publishing this magazine, and various aspects of agriculture are published in the magazine. So the next slide is also to do with selling of the farm produce. I told you that the Kheti Corner facilitates farmers. It is both online and offline, that you can sell your produce, and the consumers can directly buy from them. This is me, and I also have my own channel that's called My Garden, My Passion. So over these many, they have had a panel of speakers of KV Dialogues. We have eminent people like Dr. Kiran Kumar, who's an ISRO scientist. There are other practitioners of agriculture and such, and I can... One Mr. Jairam, who is the founder of Organic Foods, is called as Green Path Organization. And then I can see some other familiar faces. Here I can see this Dr. Basaya Hiremat, Mr. Jairam, Dr. Basaya Hiremat, and me. We are all at Vietnam. We got some awards on Global Achievers Awards. So here we come to the today's talk by Ram Vilas ji on urban Krishi. This is the first dialogue that we are having on urban Krishi. We plan to have every week one with a garden enthusiast who is doing gardening, and Ram Vilas ji is doing gardening. Maybe he started as a hobby and now it has gone beyond a hobby. And it is very important that we green the urban environment these days. And it is an apt topic that has been selected by Khetiwala to have urban Krishi. Now we see people growing food on their terraces, people growing in vertical gardens, hydroponics, and there are so many such initiatives taken by people. Okay, next. So next I will be introducing our panelist, Shri Ram Vilas ji. So he has 17 years in building construction. He's a engineer by profession. And I think after that, he got into gardening, and he found this to be more interesting and more passionate about this, that he's almost given up his for what he was qualified. So he has started gardening, and it's been 4 years since he's into gardening. And it is only through practice that he has gained a lot of knowledge. He loves nature and sharing what he knows about plants and ecosystems. That's how I came to know about him. He's so passionate about even sharing the knowledge that he has. So he has free classes, garden classes for everybody.
because people wanted to learn from him and through his experiences. So he believes that gardening is great both for personal health and the environment. And his initiative took off more during the COVID-19. He started the Sameer Singh Garden YouTube channel to help. So I have seen him mostly on the YouTube channel and I've become a great fan of his. So he answers questions live also there on if you have any questions to ask and doubts. And people liked what he teaches. So he started asking about organic fertilizers and methods to use. Now he has started selling gardening supplies like seeds, plants, fertilizers, bulbs, and tools. He delivers all over India and he's looking to expand internationally also. His goal is to make gardening easy and enjoyable for everyone by being honest and offering good products. He hopes to inspire others to join him in gardening. Welcome, sir, to this session. And I hope all of you will benefit from what he has spoken and take away the best practices, what he is going to talk about. In fact, his terrace gardens are one of a kind. I keep seeing them on videos. He changes the whole terrace according to the seasons. And as we know, he's from Karnal and in North India, where the seasons are quite distinct. Here in South India, the summers are not very severe. A very short while we are into rainy season. There's hardly special anything called spring. From winter, we almost jump into a summer season. But there in North India, they have very distinct seasons like winter seasons. And winter seasons, his terrace is so beautiful with his chrysanthemums. He specializes in growing one of the best chrysanthemums. And next, after the winter, he changes his whole setup on the terrace for a spring garden. After the spring garden, he starts his summer garden. And it's amazing how he does everything by himself. He grows a lot of vegetables too. So instead of me speaking more about him, I hand over to him. Sir, please, you can enlighten us on what you are doing and share your experiences. Thank you so much, ma'am. Thank you. आपने ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें दिया है कि और लोगों तक भी मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं, तो जरूर शेयर करेंगे। और बहुत कुछ आपने बोल दिया, जरूरत से मतलब जितना है उससे कहीं ज्यादा है। आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा मैम। You deserve it. कोशिश आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे और ये लाखों लोगों तक। अभी मेरे पास जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 25-26 लाख पीपल जुड़े हुए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया और इंडिया आउट ऑफ इंडिया, जैसे अमेरिका, अपना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के लोग जुड़े हैं। और सभी का सॉल्यूशन ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। चाहे मुझे रात को 12 बज जाए, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सारा शॉर्ट आउट करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे और बहुत सारे लोग जुड़े और सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैम आगे कंटिन्यू करें? यस सर, गो अहेड। तो स्टार्टिंग की बात करें तो मैंने गार्डनिंग जो है एज ए बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, मेरा पैशन था ये। और पैशन लगभग 25 इयर्स पहले का पैशन है ये। तो वो उस टाइम हमने 8 पॉट से शुरू किया था। रेंटेड हाउस में हम रहते थे, तो वहां पे कच्ची जगह नहीं थी, तो छत के ऊपर हमने रखा, और छत के ऊपर भी बांस की सीढ़ी लगा के गमले चढ़ाए, मतलब स्टेयरकेस भी नहीं था, ऐसी जगह थी। तो ये देखिए कि अगर आदमी के दिल में पैशन हो तो कुछ भी कर सकता है। तो वहां से ये मेरी स्टार्टिंग हुई, और इस तरह से स्टार्टिंग करते हुए मैंने देखा कि जो जगह की बात करें हम, तो आज जगह सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% पीपल है जिनके पास प्लेस, मतलब खेती के लिए जो जगह है वो अपनी है। तो किसानों के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है, और जो जमीन नहीं है ना होते हुए भी छत तो एटलीस्ट जो टेरेस है अपनी, वो हमारे इंडिया में 60 to 70% लोगों के पास, चाहे वो 50 स्क्वायर यार्ड्स का हो या 500 स्क्वायर यार्ड्स का हो, छत एटलीस्ट है। तो हम क्यों ना उसके ऊपर उगा करके अपनी सब्जी और अपना जो फ्लावर है, नेचर को सेव करने का है, वो कर सके। क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, लेकिन हम पब्लिक से ज्यादा गवर्नमेंट के पास मतलब सोर्सेज नहीं। अगर हम सारे पब्लिक मिलके जो काम कर देंगे, तो गवर्नमेंट तो प्रोग्राम्स चलाती हैं, लेकिन वो एक एक्सटेंट तक होता है। तो अगर हमें नेचर को बचाना है तो हमें आगे आना होगा, एक इंडिविजुअल को आना होगा। तो उसी संदर्भ में मैंने ये स्टार्ट किया, और ये पहले मेरा पैशन था,
लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ कि लोगों की डिमांड पहले से ही थी कि आप हमें ट्रेनिंग दो, बट मैं जैसे कंस्ट्रक्शन में था तो समय बहुत कम मिलता था, तो उसके दौरान मैं इनको ट्रेनिंग नहीं दे पाया। जब कोविड का टाइम आया तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि खाली हूं मैं, तो क्यों ना लोगों को इसके रिगार्डिंग टीच किया जाए, जो बहुत समय से लोग इंटरेस्टेड थे। तो उस टाइम से ऑनलाइन क्लासेस देनी मैंने शुरू की, और वो जो है आज 2020 से लेके अभी तक वो क्लासेस चल रही हैं। वीक में मेरी 2 क्लासेस होती हैं लाइव सेशन, वेडनेसडे 5 to 6 और संडे 5 to 6। 2 दिन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यूट्यूब चैनल समीर सिंह गार्डन पे इसका लिंक आ जाता है, आप वहां से इसको ज्वाइन करके सीख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जो हमारे बिगनर्स हैं, जो घर में गार्डनिंग करना चाहते हैं, टेरेस पे गार्डनिंग करना चाहते हैं, या खेती की बात करें हम, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर डाला है जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो शोभा मैम, आगे मैं बताता हूँ जैसे बेसिक ऑफ गार्डनिंग जो है, स्टार्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसी से स्टार्ट करें। तो बेसिक अच्छा, आपकी साउंड नहीं आ रही है मैम। सर आपके पास प्रेजेंटेशन है या ऐसे ही बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं है एक्चुअली, Okay. मेरा जो टेक्निकल है नहीं, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। और जो इसके I thought people could have seen your beautiful garden. Yes, इसका भी मैं they can go to your YouTube channel and see. यूट्यूब चैनल, हाँ यूट्यूब चैनल। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब स्टार्टिंग करते हैं तो सभी कहते हैं कैसे करें, क्या करें। अब एक बात और है मैम कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो एक एग्रीकल्चर यानी कि कृषि प्रधान देश है। हमारी जीडीपी का 70% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, यानी एग्रीकल्चर अपलिफ्ट हो गई तो आपकी जीडीपी अपलिफ्ट है, सभी चीजें अपलिफ्ट हो जाती हैं। अगर जीडीपी मतलब गिरी है तो वो एग्रीकल्चर गिरने की वजह से, जैसे कोई मौसम की मार या कुछ ऐसा पड़ा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिगनर्स। तो बिगनर्स क्या करें, अक्सर क्या होता है कि शौक में आदमी बहुत सारे गमले या बहुत सारी जगह एक साथ शुरू करके उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो फिर वो डिमोट होकर के और उसको छोड़ दे। तो उसके लिए हमने ABC ऑफ गार्डनिंग भाग 1 और भाग 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया, और उसको देखने के बाद कोई भी गार्डनिंग आसानी से कर सकता है, यानी कि 70% जो आपकी प्रॉब्लम्स है गार्डनिंग से रिलेटेड, वो सारी उसमें सॉल्व हो जाती है। ABC ऑफ गार्डनिंग पार्ट 1 पार्ट 2। तो किसी को भी स्टार्ट करने के लिए ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, और स्टार्ट करने के लिए हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे अगर घर में कोई टेरेस पे कर रहा है या कोई अपने छोटे बागीचे में, तो उसमें क्या है कि छोटे से लेवल से स्टार्ट करें, 10 गमलों से शुरू कर लिया या छोटी सी क्यारी से शुरू कर लिया, तो वो सक्सेसफुल मिल जाएगा। नहीं तो एकदम बड़ा जो झटका है, कहने का मतलब बड़े लेवल से स्टार्ट करके उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो वो उसको डिमोट करने का कारण बन जाता है। तो हमने जिसको भी सजेस्ट किया वो कहते हैं छोटे लेवल से आप स्टार्ट करिए, ताकि आपको आगे इसमें सक्सेस धीरे धीरे मिल जाए। दूसरी बात क्या है मैम, जैसे खेती वाले हैं, अब जो प्रोग्राम आप लोगों ने चलाया बहुत अच्छा लगा मुझे कि शुरू से अंत तक सभी को जोड़ा है। अक्सर जो एग्रीकल्चर में किसान फेल ये होता है, प्रोडक्ट तो उगा लेता है लेकिन उसका जो कंजप्शन है वो कंजप्शन नहीं हो पाती, कहने का मतलब उसको सही प्राइस नहीं मिल पाता, सही मार्केट का नहीं पता होता है, तो उस वजह से जो उसने मेहनत की है उसकी पूरे हार्ड वर्क का प्राइस नहीं मिल पाता। अब देखिए कि एक मार्केट में हम चीज खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत है 30 रुपए, लेकिन वो जो फार्मर्स का है वो फार्मर्स 10 रुपए में ही बेच के आता है, 8 रुपए में ही बेच के आता है। तो सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम दिखाया मुझे, जिसमें 8 पॉइंट्स रखे गए हैं जिनको किसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर किसान ऐसा करते हैं। दूसरी बात किसान के लिए है कि मैंने ये देखा मैम अपनी डे टू डे नॉलेज में या मिलने जुलने में, कि जो 5 एकड़ जगह है या 2 एकड़ जगह है लैंड, वो भी पर्सन आज जो न्यू जनरेशन है वो एक जॉब की तरफ आ गई। जॉब कितने की है, 10,000 15,000 मैक्सिमम 20,000। 5 एकड़ का जो लैंड होल्डर है उसके लैंड की आज बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर 1 एकड़ की कीमत ऑलमोस्ट जो है 90 लाख टू 1 करोड़ है, यानी कि 5 एकड़ जगह है तो वो 5 करोड़ का मालिक, लेकिन वो भी फिर भी 15,000 की जॉब कर रहा है। रीजन क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। वो एक करना नहीं चाहता क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, जो खेती बाड़ी है उसको घाटे का सौदा समझते हैं। लेकिन आप जो ये प्रोग्राम ला रहे हैं इसके तहत काफी मैं देख रहा हूँ कि हेल्पफुल हो जाएगा ये, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे आपने इन्वेस्टर जोड़ दिया
आप इन्वेस्टर जोड़ देंगे उसके साथ, तो किसानों को जो फंड्स की दिक्कत है वो खत्म हो रही है। मार्केट प्लेस जोड़ दिया आपने, बायर जोड़ दिए, तो उनको जो है अपनी फसल को यहाँ वहां लेके भटकना नहीं है, एक्चुअल प्राइस उसको मिल पाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपका। और आगे मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि हम सबसे पहले जैसे आपने खेती वाला शुरू किया कि लॉन्ग स्टेज पे हम काम करें जैसे कृषि में, तो उसको कैसे करना है। तो देखिए अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ भी, और मोटी फसल उगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गेहूं है, चावल है, तो इस तरह की जो फसलें हैं एक बार उगाई और 6 महीने में तैयार हुई, फिर दूसरी हुई। तो ऐसे में क्या है कि एक ही फसल, अब जो किसान का खर्चा है वो तो डे टू डे का है, तो ऐसे में किसान डे टू डे के खर्चे को मीट कैसे करे, डेली का खर्चा जो है वो नहीं मिल पाता उसको, तो फिर वो इधर उधर भटकता है। तो ऐसे में मल्टी लेयर फार्मिंग बहुत काम करता है। मल्टी लेयर फार्मिंग का मतलब ये है कि आपने एक मानिए कि भाई कोई बाग लगा दिया, उसके बीच में जो जगह है, बाग एक बार जो है 2 साल के लिए 3 साल के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है जब तक वो ग्रो नहीं होता, और उसके बीच की जगह है उसमें हम लगा सकते हैं कई चीजें, जैसे हल्दी है, अरबी है, अदरक है, कई मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसको लगा करके एक अच्छी इनकम उसमें से भी जनरेट हो सकती है। और जो बाग लगाया आपने, जैसे आजकल अमरूद की कई वैरायटी आ गई है, तो उसको लगाते हैं तो साल में 8 से 9 महीने उसकी ईल्ड हमें मिलती रहती है, लगातार इनकम का सोर्स है। तो इस तरह की मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो परमानेंट, जैसे ग्रेप वाइन लगा दिया तो ऊपर वो चल रहा है और नीचे कुछ छाए वाली चीजें हैं, उसको लगा करके डबल इनकम, ट्रिपल इनकम बनाई जा सकती। इसी तरह से जो घर में करने वाले लोग हैं, हमारे जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके घर के काम के बाद खाली हो जाती हैं तो कहीं बाहर जा नहीं सकते, कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कई एजुकेटेड इस तरह नहीं है, या कईयों को सिचुएशन एजुकेटेड होने के बावजूद भी नहीं हो पाता, तो हमने टेरेस पे बहुत कुछ किया है। टेरेस पे जैसे कई टाइप की जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको लगा करके और उससे अपनी इनकम जनरेट कर सकते। तो वो एक छोटा सा इनकम जो घर में रहते हुए अपने घर संभालने के साथ साथ छोटा सा बिजनेस उसका भी कर सकते। और इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता है। टेरेस पे आपने जैसे देखा, और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप दिखा देंगे। आज मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं तो मैं स्लाइड्स भी आपको दिखा पाता। बच्चे मेरे एक्चुअली दोनों बाहर हैं, तो वही ये सब चीजें अरेंज करते हैं और वहीं से सारा ऑनलाइन होता है, तो आज नहीं हो पाया ये, और आगे फ्यूचर में कोशिश करूंगा। बाकी यूट्यूब चैनल हमारा समीर सिंह गार्डन है, तो उस पे देख करके और मोटिवेट हो सकते। तो उसके लिए कोई ज्यादा नहीं है, हमें क्या होता है कि पॉट्स में लगाना है। पॉट्स, छोटे पॉट्स जो है आसानी से मिल जाते हैं। उसके अलावा भी हमने लोगों को ये ट्रेनिंग दी है, जैसे घर में आटे की थैली आती है, चावल की थैली आती है, उसके अंदर भी मिट्टी भर के हम अपने छत पे रख करके उसके अंदर जो प्लांटेशन कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट, इन सब्जियों का, जैसे कोई सब्जी बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, इन सब चीजों को ग्रो कर सकते। तो लो बजट में बढ़िया काम आप अपनी छतों पर कर सकते। You can talk more about vegetable cultivation on your terrace. यस मैम, बिल्कुल। Start off. How do we start off? वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए देखिए क्या होता है कि आपने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपके इधर जो टेम्परेचर है वो तो कम है, लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है एक्सट्रीम कोल्ड है। अभी जैसे एक मंथ की अभी एक्सट्रीम कोल्ड ऐसी चली गई, टेम्परेचर 1-2 डिग्री रह गया, 1-2 डिग्री टेम्परेचर पे आ, तो वो भी एक्सट्रीम है। और हॉट वेदर की बात करें तो 46-45 भी चला जाता है। तो हम 3 टाइप की सब्जी 3 टाइम में उगाते हैं सब्जी। फर्स्ट में आपको, जैसे अब आने वाला समय है रेनी सीजन का है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेनी सीजन आएगा, तो रेनी सीजन की जो वेजिटेबल्स है उसका हम प्लांटेशन शुरू करेंगे। अभी सीड देना शुरू करेंगे जैसे 10 से 15 मई से, और 15 जून के बाद हम उसको बोना शुरू कर देंगे, मतलब पौध जो बीज है वो उगाना शुरू करें। रेनी सीजन हम 3 बार देते हैं, तो रेनी सीजन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके आगे आगे मैं आपको बता। तो रेनी सीजन का जो सीड्स है वो हम ग्रो करेंगे 15 जून के बाद। 15 जून से ग्रो करेंगे तो लगभग 15 अगस्त के आसपास जो है उसकी फ्रूटिंग हमें मिलने लग जाता है। 60-70 डेज में फ्रूटिंग मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आ जाता है विंटर सीजन। विंटर सीजन आ जाता है मैम, तो विंटर सीजन जो हमारा शुरू होता है वो होता है 15 सितंबर के बाद। आफ्टर 15 सितंबर जैसे कि हम विंटर सीजन की जो सब्जियों की सीडलिंग्स है उसको लगाना शुरू करते हैं, जैसे कि टोमेटो है, ब्रिंजल है, या और जो हमारी आ जाती हैं विंटर सीजन में, फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये सभी चीजें जो है हम सीडलिंग्स अपनी तैयार कर सकते हैं 15 सितंबर से। 15 सितंबर से एक महीने में 15 अक्टूबर तक तैयार हो जाती हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, धनिया है, मेथी है, पालक है, मूली है, गाजर है, इनको तो हम डायरेक्ट लगा, तो ये शुरू हो जाती है। और ये छोटे छोटे ग्रो बैग्स के अंदर इनमें सभी चीज में पॉसिबल है। छोटे ग्रो बैग में, जैसे कि मैंने घर में बताया, कोई बाल्टी है, खाली बाल्टी प्लास्टिक की, तो इनमें भी जो हमारे होम गार्डनर्स हैं अपनी सब्जियां उगा सकते। और प्लास्टिक के टब्स मिल जाते हैं, उसमें आप मेथी, धनिया, पालक, ये सब चीजें बहुत इजीली उगा सकते हैं। उनका उगाने का टाइम 15 सितंबर से लेकर के और दिसंबर एंड तक इनको आप बो सकते। कभी कभी मैक्सिमम जो है 15 जनवरी, इसके बाद मौसम हार्श होता चला तो उसमें हम नहीं कर सकते। तो ये विंटर सीजन की सब्जियों को लगाने का समय जो है 15 सितंबर से
दिसंबर एंड तक आप लगा। इसके बाद आ जाती है हमारी समर सीजन की वेजिटेबल्स। समर सीजन की जो वेजिटेबल्स है उसको लगाने के लिए भी आजकल देखिए सीड्स ऐसी आ गई हैं हाइब्रिड। पहले ये होता था कि आप बेल वर्गीय सब्जी लगाते थे, जैसे कि लौकी है, तोरई है, खीरा ककड़ी है, तो वो काफी लंबी बेल हो करके फ्रूट आता था। ऐसे में टेरेस पे बालकनीज में लगाना पॉसिबल नहीं होता था सबके लिए, छोटी छोटी आजकल जगह है, टेरेस है, तो ऐसा नहीं रहा। अब क्या है, हमारे पास हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं जो मात्र 40 to 60 डेज के अंदर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। मैक्सिमम 60 डेज में, 45 to 60 डेज में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। और लौकी भी लगाएंगे तो 2 से 2.5 फुट का, 3 फुट का मैक्सिमम पौधा होते ही लौकी लगनी शुरू हो जाती है। तो इजिली जो है छत पे लगाया जा सकता है, बालकनी में लगाया जा सकता है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी लगा रहे हैं। और आपको हैरानी होगी कि ये कोई नॉर्थ इंडिया के लोग ही नहीं है, मेरे पास साउथ के भी, हैदराबाद के काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और हैदराबाद में भी ये सब चीजें हो रही हैं। चेन्नई जैसे एरिया में जहाँ पे फ्लावरिंग के लिए मना करते थे, फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, काफी हीट मानते थे, वहां भी हमारा क्रिसैंथेमम की आपने बात की, क्रिसैंथेमम बहुत अच्छा उगाया जा रहा है। बाकी की फ्लावरिंग भी चेन्नई में और गुजरात में, इधर सभी जगह पर हम उगवा रहे हैं। मतलब जो ट्रेनिंग हमने दी है उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर दे रहे हैं, फर्टिलाइजर नेचुरल में दे रहे हैं। नेचुरल कहने का मतलब आपके आसपास के एरिया में जहाँ पेड़ हैं और पत्ते गिरते हैं तो उस पत्ते को डिकम्पोज कर, उसको जहाँ पे आग के हवाले कर देते थे, पॉल्यूशन बढ़ता था, तो उसको हमने क्या किया, खाद के रूप में कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया और उसको इकट्ठा करके खाद के रूप में उसको यूज। तो जो समर सीजन की वेजिटेबल्स हैं वो 15 जनवरी से शुरू होकर के और 15 मार्च तक आप लगाइए, बहुत अच्छी यील्ड आती है। और 15 मार्च के बाद लगाएंगे तो थोड़ा कम आएगा। जैसे अब अप्रैल एंड हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं समर वेजिटेबल्स के सीड्स दे दो, समर वेजिटेबल्स लगानी, तो मैं अब इस टाइम मना कर देता हूँ कि समर वेजिटेबल्स अब मत लगाइए, क्योंकि अब देखिए अप्रैल एंड हो गया है। जब तक समर वेजिटेबल्स तैयार होगा लगने के लिए, फल देने के लिए, अगर आप भी सीड्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि तब तक हीट वेव्स खत्म हो जाएंगी, मॉइस्चर आ जाएगा एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे फर्क क्या है रेनी सीजन और जो समर सीजन की वेजिटेबल्स में है, इसमें समझने वाली बात ये है कि जो रेनी सीजन की वेजिटेबल्स है वो मॉइस्चर में चलती है। अब आगे बारिशें होंगी तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है हमारी ह्यूमिडिटी अच्छी हो जाएगी, तो उसमें वो अच्छा ग्रो कर। और जो हमारी समर सीजन की वेजिटेबल्स है वो 15 जून जैसे मैंने कहा एंड हो जाएगा। तो 15 जून के बाद बारिशें शुरू हो जाती है, ऑलमोस्ट कई जगह तो पहले शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में 15 जून के बाद ही तो मॉइस्चर में जो हीट वेव्स में चलने वाली सब्जियां थी हमारी समर वेजिटेबल्स, तो सिर्फ भिंडी और तोरी एक ऐसी है जो कंटिन्यू आगे चलती रही। अदरवाइज बाकी की जो सब्जियां हैं वो फ्रूटिंग बंद कर देती हैं, जैसे उनको एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, तो इसीलिए टाइम टू टाइम चेंज कर देना चाहिए। और फर्टिलाइजर की बात हम करें तो फर्टिलाइजर जब आप घर में उगा रहे हैं तो इसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर मना करते हैं, पेस्टिसाइड मना करते हैं। तो उसके लिए क्या है, होममेड फर्टिलाइजर, जैसे मैंने बताया लीफ तरह तरह की है, उससे फर्टिलाइजर बना के आप घर में यूज कर सकते हैं। एक तो क्या है आपका जो कॉस्ट कटिंग हो गई, खर्चा आपको केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर के लिए नहीं खर्चना है। किचन वेस्ट आपका जो है उसको डिस्पोज ऑफ करने की बड़ी समस्या है। किचन वेस्ट को किसी डब्बे में, ड्रम में उसको डिकम्पोज करके, गुड़ और दही थोड़ा सा डाल करके, वेस्ट डिकम्पोज बैक्टीरिया डाल करके उसका आप जो है बढ़िया आप बना सकते हैं फर्टिलाइजर, जिसको आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक। तो ये सब चीजें डाल के कॉस्ट कटिंग हो जाती है और बिना किसी बाहर के खर्चे के आप वेजिटेबल्स अपने घर में उगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया आटे की थैली है, चावल की थैली है, तो अपने टेरेस पे रख करके उसके लिए भी जो कॉस्ट कर सकते हैं वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नहीं कॉस्ट नहीं लगाना चाहते तो उसमें भी आप उगा करके बहुत अच्छी यील्ड ले सकते हैं। कई बार घर में पेंट की बाल्टी होती है, कई टूटी बाल्टी होती है, तो उन सब चीजों को हम इसमें बड़े इजी तरीके से यूज कर लें। और फर्टिलाइजर भी बता दिया, जैसे फर्टिलाइजर इस तरह से यूज करेंगे तो ऑर्गेनिक चीज है, उसमें टेस्ट भी अच्छा है। और पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड में भी देखिए आप लोग, पेस्टिसाइड जैसे घर में हम नींबू, संतरा, मौसमी वगैरह का यूज करते हैं तो उसका छिलका जो है हम फेंक देते हैं, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, उससे आप तरह तरह के एंजाइम बना सकते हैं और उसको प्लांट में जो है हम एज ए पेस्टिसाइड और ग्रोथ एनहांसर स्प्रे करके यूज में ले सकते हैं। तो उसका जो एंजाइम बनाने का तरीका है, आपको कट करके और एक बॉटल में, मतलब जिसमें गैस बने, कहने का मतलब एयर टाइट बॉटल में या एयर टाइट कंटेनर में रखना है और उसके साथ गुड़ डाल करके, पानी डाल करके डेली गैस बाहर निकालना पड़ता है। इसके बाद 3 से 6 महीने के बीच में आपको बन के मिलकर तैयार हो जाए, फिर उसका स्प्रे आप कर सकते। तो ये भी पेस्टिसाइड, भी एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आपके घर में तैयार हो गया। तो इस तरह से अपने घर की चीजें उगा करके खा सकते हैं। और यही चीज हमारे जो फार्मर्स हैं लार्ज स्केल पे करना चाहें
तो देखिए जूस की दुकानों पे वो थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद का पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं, खुद का फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो लार्ज स्केल पे खेती करना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास कुछ टिप्स इस तरह रहती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि खाद को पूरे खेत में फैलाते हैं, पूरे खेत में हमने डाल दिया। अब पूरे खेत में खाद डालेंगे तो नेचुरल सी बात है कि खाद की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हमारी कंज्यूम होगी। और दूसरी बात ये होती है कि पूरे खेत में खाद हम ऐसे बिखेरते हैं तो उसमें जो बीड्स हैं, जंगल है, उसको भी खाद मिल जाता है। तो बीड्स में एक क्वालिटी होती है कि वो जल्दी एब्जॉर्ब करने की, हमारी जो फसल है, जो हमने फसल बोई उसके अंदर हील जो लेनी थी वो तो छोटी रह जाती है, और हमारी जो बीड्स है, जंगल है, वो जल्दी बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि जैसे बेल वर्गीय सब्जी है तो उसको हम क्या करते हैं, आलू जो हम मेड़ बनाते हैं, मेड़ के अंदर ही सिर्फ फर्टिलाइजर डाल दिया, मेड़ के अंदर फर्टिलाइजर डाल दिया तो बाकी एरिया में फर्टिलाइजर। बेल वर्गीय सब्जी है तो उसको जो हम लगाते हैं, जैसे लाइन में लगाया एक अपना ट्रेंच के अंदर, तो सिर्फ ट्रेंच के अंदर ही फर्टिलाइजर डाल दे। तो इसमें क्या होता है, पूरे खेत में फर्टिलाइजर नहीं गया तो बीट्स हमारी कम हो गई। एक फर्टिलाइजर जो हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी तो उसमें 25% तक में ही काम हमारा। तो उनके लिए टिप्स है कि इस तरह से करके अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा का सौदा तैयार हो जाएगा हमारा जो एग्रीकल्चर। Sir, you don't have problems like animals coming like monkeys and all in your terrace, is it? ये Because गुड that क्वेश्चन is है, your- बहुत बढ़िया because, क्वेश्चन है। right now in my compound, they are having fun today. Whole day they are in my compound, and it becomes difficult to grow vegetables with monkeys coming like this. So बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जायज है, हमारे हरियाणा में भी है, लेकिन भगवान की कृपा कहें, ग्रेस ऑफ गॉड है नाम हमारी फर्म का, तो उनकी कृपा ऐसी है कि मेरे को इतना तंग नहीं किया। रेजिडेंस के ऊपर था जहां, तो रेजिडेंस के ऊपर एक दो बारी आया तो मुझे फिर मैंने एयर गन लिया उनको डराने के लिए। एयर गन एक आती है, गन पूरी होती है और साउंड पूरा करता है वो, तो एयर गन से वो डर के, एक दो बारी उनको लगी एयर गन तो वो डर गए। और दूसरा तो फिर ये है कि कहते हैं, कई लोग बताते हैं जैसे लंगूर, लंगूर की फोटो बड़ी बड़ी आप अपनी वॉल्स पे वहां लगा दें। लंगूर जो बंदर होता है ना, ये बंदर नहीं, लंगूर होते हैं ब्लैक मुंह वाले, तो उसकी बड़ी बड़ी फोटोज लगा दो, पोस्टर इस तरह का, तो उसको देख करके ये आपके बागीचे में नहीं है। सबसे अच्छा जो टेक्निक है इस टाइम ये है, अदरवाइज गन लेकर के सबके लिए चलना जो एयर गन है वो पॉसिबल नहीं है। नेटिंग अगर कराते हैं तो नेटिंग का खर्चा बहुत पड़ जाता है, बहुत ज्यादा। पूरा छत अगर आपको कवर कराना है तो वो कॉस्टिंग काफी पड़ जाती है। तो लेटेस्ट जो टेक्निक है मैं बता रहा हूँ, जो लंगूर बंदर की पोस्टर्स हैं वो तो बड़े इजिली आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, तो उन पोस्टर्स को बड़े बड़े को लगा दो तो उससे बहुत डरते हैं, और जहां पे पोस्टर वो लग गया तो वो फिर नहीं आते। काफी लोगों की सुनी। फिर कई लोग स्क्वेरल्स की भी कंप्लेन करते हैं कि गिलहरी सारे पौधे काट देती है। लोग लगाते हैं और गिलहरी जो है वो सारे पौधे काट देती है। तो उसका एक तो खाना डाल दें, अगर उससे भी नहीं बनता है तो उसके लिए हमने बताया सॉल्यूशन कि आपने क्या करना है कि जो माउस ट्रैपर होता है, माउस ट्रैपर आप लगा सकते हैं। माउस ट्रैपर में गिलहरी फंस जाएगी, रोटी या कोई चीज ऐसी उसके पसंद की डाल देंगे, 2-3 घंटे उसको छोड़ दें, इसके बाद उसको आजाद कर। देखो नेचर का हिस्सा है, इनको हम कोई दवाई से किसी चीज से मार नहीं सकते। नेचर को हम सेव कर रहे हैं और उसी में रहने वाले जीव जंतु को रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा उनको डराना है कि उस चीज में ना आए, हमारे बागीचे में ना घुसे। तो वो गिलहरी इतनी समझदार होती है, 1-2 बार फंसेगी, इसके बाद आपके यहाँ आना छोड़ देगी, वो आसपास ही रहेगी, लेकिन आपके नुकसान जो है वो रुक जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको करके हम इसको बचा सकते हैं। with experience, you will learn such things. हाँ जी, With experience, हाँ जी, you हाँ जी। know which works for you and which does not work. Squirrels, I forgot to ask about squirrels. They are eating my succulent plants. Specific succulent plants are there. They eat the fleshy leaves. They will come and bite on them. I think it is squirrel. I don't know. At night they are doing it. So as Okay. you said, I will keep some food for them and see if it works. They will eat the food and not the succulents. Let me try that. फूड डालिए। अब हमने जैसे टेरेस पे फ्रूटिंग प्लांट लगाया हुआ है, तो टेरेस पे फ्रूटिंग प्लांट जो है पूरा भरता है, मतलब अमरूद जो है सैकड़ों अमरूद एक ड्रम में लगा होता है मेरा। चीकू में 15-15 केजी चीकू एक पौधे से छत के ऊपर से उतार लेते, लेकिन उसमें क्या है कि उनको खाने के लिए जरूर छोड़ देते हैं। अब वो गुआवा भी, अमरूद भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे। एप्पल बेर है, एप्पल बेर 7 से 8 किलो एप्पल बेर छत के ऊपर एक पौधे पे मेरा लग जाता है। तो वो एप्पल बेर भी कोई जैसे आए, विजिटर्स आए, उन्होंने उनको दिया, अदरवाइज जो है वो उनके लिए ही छोड़ दिया और उनको खाते हैं। तो हमारे यहाँ तरह तरह के पक्षी, स्क्वेरल्स, ये सभी हैं, लेकिन प्लांट को नुकसान नहीं होता।
प्लांट को कोई नुकसान नहीं। You are lucky, sir. थैंक यू। तो इस तरह का थोड़ा सा खाने पीने का उनको दे दें। और दूसरा, अगर ज्यादा तंग करते हैं तो उनको माउस ट्रैपर से डरा सकते हैं, माउस ट्रैपर में जो स्क्वेरल्स के लिए है, और मंकीज के लिए उनके पोस्टर्स लगा दें आप आसपास, तो वो उससे दूर रहेंगे, नहीं आएंगे। और नहीं उनको छेड़ा जाए तो फिर तो वो बहुत दुगना नुकसान करते हैं, फिर वो गमले भी पटकेंगे, सब कुछ करेंगे। Every day it happens, sir. I have accepted it, sir. I have mongoose, I have civet cats are there, rats are there, squirrels are there, monkeys are there, birds are there. Because we have very big trees, fruit trees, chiku and mango, they're all for the monkeys and the animals. Hardly Oh. anything we get. So since on a terrace, you have easily you can harvest. Here we don't have that. They will only eat and go. Whatever little is remaining, we will get. ओके मैम। It is all part of ये nature. भी एक नोबल कॉज, बहुत बढ़िया नोबल कॉज है, क्योंकि Yes, जंगल I खत्म have हो रहे हैं, accepted. प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, तो वो क्या करें, उनको भी कहाँ जाना है, फिर खाने को तो चाहिए एटलीस्ट। Yes. बहुत नोबल कॉज है मैम, फिर तो आप इतना। Thank you, sir. अब हमारे पास जैसे यहाँ बैठते हैं ऑफिस में हूँ मैं इस टाइम, तो यहाँ पे हैं तो तरह तरह के, एक आपने टटीरी बर्ड सुनी होगी, वो जो बड़ी लंबी टांगे होती हैं उसकी, और इन्हीं दिनों एग लेइंग करता है, बरसात आने से पहले वो चिल्लाती है, तो वो आदमी के पास जल्दी नहीं जाती है। बट हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं कि खाना मांगने के लिए दोपहर का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो वो तीनों टाइम आके वहां चिल्लाएंगी और उनको खाना दे देंगे, खा के चले जाएंगे। शाम को सूरज छिपने से पहले उनको खाना चाहिए। सूरज एक बार सनलाइट गया तो खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी पड़ा हुआ है टच नहीं करेंगे, उससे पहले पहले आकर के आवाज दे देंगे। तो मतलब तीनों टाइम का बंधा हुआ है, मिलना है खाना। अब पानी रखा हुआ है कटोरों में भर के जगह जगह पे, जैसे गर्मी हो गई। Yes. एक गोरैया है, तो गोरैया आजकल आने लगी है, ऑफिस में घुस जाएगी, यहाँ वहां वो जगह ढूंढ रही है। इस बार 50+ टेम्परेचर जाने वाला है, जैसा खबर आ रही है 50+ जाएगा डिग्री टेम्परेचर, तो वो अभी से वो ठंडी जगह ढूंढ रहे हैं। तो ऑफिस में अंदर आकर के यहाँ वहाँ जगह ढूंढ रही है, कहीं जगह मिल जाए। गोरैया जो होती है बहुत अच्छा, क्योंकि वो हैबिटेट उसका होता है हमारे आसपास, और बहुत अच्छा पक्षी है। Yes, sir. We should have what we are talking about, urban gardening. Yes. At the same time, not only for us, it should be for the environment, and what Janya Jeevigal they are there, all of them should survive. We should get our share, they should get their share. And this is a major problem in urban gardening. As you said, their habitats have gone, the monkeys, birds and all. So maybe they come to my compound because it looks little like jungle and their habitats. Yes, So ma'am. we should give them also some food and see that, like you said, killing, poisoning is not the answer. No. We have never. I do never suggest this. that we Because, will coexist. part of nature ना, part Yes. of our life, तो हम उसको कैसे जहर देंगे? तो वो पॉइजन वगैरह देने के लिए मैंने कभी किसी को नहीं, इनको छोटी छोटी जो टिप्स है उनके लिए कर दिया, डरा दो, कर दो, उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे, अवे रहेंगे, बट पॉइजन नहीं। दूसरा, अर्बन गार्डनिंग के देखिए, अभी तक तो हमने बेनिफिट ये लिया कि ये उगा लेंगे, ये खा लेंगे, लेकिन ये एक फेज था। अब सेकंड फेज देखिए इसका क्या है। हम आजकल क्या है, गाड़ी चला रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं उससे कर रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं उससे कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं उससे कर रहे हैं। आप सपोज करें कि एक पर्सन जो है या एक फैमिली दिन भर में 10 किलो कार्बन निकाल रहा है, चाहे वो गाड़ी चलाए, फ्रिज करे, एसी करे, गैस चलाए, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए जो हमने 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, 10 kg, उसको रिड्यूस करने का कोई साधन नहीं, वो हम सीधा और सीधा गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। दिस इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट कहां तक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी उसमें। तो इसमें देखिए जो टेरेस गार्डनिंग है, हमारी बालकनी गार्डनिंग है, टेरेस गार्डनिंग है, इसका बेनिफिट देखिए। इतनी हीट बढ़ रही है, छत सारे कंक्रीट के हो गए, उस पर जब हीट पड़ती है अगर 45 डिग्री की, तो वो 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट करके 60 डिग्री बन जाएगा, जिस वजह से हीट बढ़ रहा है। तो ये जो हमारी टेरेस गार्डनिंग है और बालकनी गार्डनिंग है, इसके बेनिफिट एक तो हमने देखा एक फेस, इससे हमें सब्जी मिल जाएगी, इससे हमें फ्लावर मिल जाएगा, बट दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब ये पौधे लगाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, और दूसरी चीज क्या, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो अगर 10 kg कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ रहे हैं और घर पे कुछ पौधे लगा करके उसको हमने 4 kg भी कम कर दिया,
ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, तो 6 kg का ही डिफरेंस रहा ना हमारा, 6 kg का। तो वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ऑक्सीजन अलग मिलेगा। हीट वेव्स जो आती हैं छत के ऊपर, अगर आप ऐसा छत है तो एसी 6 घंटे चलाना है। अगर आपने पेड़ पौधे छत पे लगा दिया तो एसी की जो चलाने की कैपेसिटी है वो 3 घंटे की हो जाएगी आपकी, क्योंकि छत इतना हीट नहीं होगा, एसी को उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये बेनिफिट्स जो है वो तो मतलब छुपे हुए हैं, मर्ज है, मतलब किसी को दिखाई नहीं देता। This is a पौधा major लगा रहा है, पौधा major लगा रहा है इंसान। benefit in urban gardening that we can हाँ, tell. No, other than what fruits and for ornamental and what we are getting to consume, this is one of the major benefits that is required in urban areas for urban gardening is Yes. to decrease the heat and the temperatures. कार्बन I डाइऑक्साइड। can very confidently tell that the moment anybody enters my compound, at least 2 degrees less the temperature is. So Yes, yes. because of the huge trees, 2 to 3 degree, 4 degree according to the plants. जितना plants आप लगाते that हैं is उस what. tree में। Maybe because I have very big trees, it is okay. But whatever little we can contribute. If you have vertical garden, your walls may remain cool. So that way, this is another major advantage of urban gardening is the cooling effect, especially during this climate change when things are getting so hot in summer. One of the greatest advantage of urban gardening is it will you will reduce what you call and better oxygen and heat reduction is there. Yes, ma'am. Next, इसका जो एस्पेक्ट है देखिए, some plants are giving 24 hour oxygen. उसमें से ये सिंसनवेरिया, ये मदर इन लॉ टंग प्लांट, स्नेक प्लांट, सिंसनवेरिया, मदर इन लॉ, एक ही प्लांट के 3 नेम है। अब अक्सर क्या होता है, जैसे हीट इतनी पड़ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, एसी चलाते हैं घर में, और एसी चलाने से पहले डोर को बिल्कुल पैक कर देते हैं, कहीं एसी की ठंडक बाहर ना निकल जाए। बट ये फॉरगेट हो जाता हमारे माइंड से कि एसी की ठंडक तो बाहर नहीं जाएगी, बट बाहर से आने वाला जो ऑक्सीजन था वो कहां से अंदर एंटर करेगा। यही रीजन है हम एसी में सारी रात सोते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, बट सुबह उठते हैं तो उबासियां आ रही होती हैं, सारा शरीर थका टूटा। रीजन बीइंग क्या है कि ऑक्सीजन हमारी बंद हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, तो बॉडी में ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं गया ब्लड के अंदर, तो बॉडी जो है लेजीनेस फील करेगा, बार बार उबासियां आएंगी, मतलब इतना कंफर्ट में सो रहे हैं, इसके बाद भी आप पूरा दिन फ्रेश नहीं है। रीजन एक ही है, ऑक्सीजन की कमी। तो आजकल जो लोग एसी में इस तरह से रहते हैं उन सभी को ऑक्सीजन की कमी, और तरह तरह की बीमारियां जो डेड सेल्स हो रहे हैं हमारे, ऑक्सीजन की कमी से हो रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को मिलता नहीं, तो वो बीमारियां जो है इतनी इससे पनप रही। अब उसका भी देखिए, एसी भी चलाइए आप, लेकिन जो सिंसनवेरिया प्लांट है, जिसको हम मदर इन लॉ टंग प्लांट, सिंसनवेरिया साइंटिफिक नेम है, और स्नेक प्लांट जो है एक हिंदी नेम है, तो उसको आप एक अच्छा गमला, मतलब 10-12 इंच के गमले में अच्छा पौधा लगाइए। अगर एसी चला रहे हैं आप, अपने कमरे के अंदर एक पौधा हुआ, अच्छा भरा हुआ पौधा रखिए, ऑक्सीजन की कमी आपको नहीं। जितना वोलेटाइल गैसेस आपके घर के अंदर है वो कंज्यूम करता है, और बदले में 24 आवर ऑक्सीजन सप्लाई। ये हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया। I have a take on this, sir, that one pot is not sufficient. To a certain extent, it might reduce, but one pot may not make a significant difference. They say to increase the oxygen, you should have at least 2 walls completely covered by plants. Then there is some enough oxygen change. Inside the room, ma'am. Inside the house, sir. Plant should be. I have made a video on this and told that Sansevieria, yes, 24 hours it is giving you oxygen, right? But the amount of oxygen it gives may not be sufficient for the whole room. If it is a very small room and a very small area, it may help. But what you are telling is true, sir, that I agree with you, ma'am. But something देखिए कि अगर बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, वो वहाँ पे 25% भी आपको मिल रहा है, तो बॉडी जो है रिलीफ महसूस करती है। और इसकी सबसे जो खासियत वाली बात ये है, आप ये देखिए जो वोलेटाइल गैसेज है, हमारे सभी के घर में डेकोरेटिव पीस में प्लास्टिक आइटम कहीं ना कहीं लगी हुई है, और तो और इस टाइम ऐसा चल गया है कि वॉल के ऊपर जो है वो प्लास्टिक पैनलिंग चल गई है। ऑफिसेज में, होम में उन्होंने कहा हमें व्हाइट वॉश कराने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक पैनलिंग करा। Even paints have volatile gases. बिल्कुल, पेंट्स में, बट प्लास्टिक पैनलिंग आर मोर डेंजरस बिकॉज बेंजीन रिलीजिंग ऑल द डे, ऑल नाइट। तो वो जो बेंजीन है
ये उसको एब्जॉर्ब करता है, वो एक सबसे अच्छी खासियत इसके अंदर है। और प्लांट की बात है तो अच्छा बढ़ा हुआ प्लांट है। लोग क्या करते हैं, एक सिंगल डंडी का प्लांट को रख लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई सफिशिएंट हो गया। नेवर। बिल्कुल नर्सरी आपकी में बात बोलते सही है। हैं सर, नर्सरी में बोलते हैं ये लेके जाओ, ये ऑक्सीजन वाला प्लांट है। हाँ, वो छोटे से One गमले में। selling technique, one small plant, and they will hype and make it costly and tell this is oxygen releasing plant. For that matter, all the plants will release either carbon dioxide or oxygen. You have cam plants, you have non-cam plants. Okay, that is a different topic for a different day. So as of now, we should have plants around us to keep the temperature cool and for absorption of the carbon dioxide and volatile gases. Yes. If any of the participants, so somebody has asked about how to control ants, mealy bugs, etc., which destroy the plants very quickly. गुड क्वेश्चन मैम। मिलीबग, एंड्स भी हमारे जो लाइफ का हिस्सा है, तो उसको भी मार नहीं सकते। कहाँ पे, घर में है, अगर प्लांट्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलीबग्स के लिए बेस्ट, जो मैंने अभी आपको एंजाइम बोला, मिलीबग्स के लिए बहुत अच्छा है और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलीबग्स के लिए जो एंजाइम डालेंगे उससे मिलीबग्स आपका खत्म हो जाएगा। प्रेशर के साथ डालना है, 7 से 8 ml 1 लीटर पानी में मिला करके उसको स्प्रे करेंगे। मिलीबग्स का बहुत अच्छा है। और दूसरा मिलीबग का अगर एकदम तुरंत चाहिए, जैसे उसको एंजाइम जो है सभी लोग नहीं बना पाते, तो आप सभी के घर में हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस वो है ही है। आजकल जब से कोविड है, इसके बाद हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस है, उसके अंदर आप 40% पानी मिला करके और उसके ऊपर स्प्रे करिए, मिलीबग आपका चला जाए। इवन के स्पाइडर माइट जो कि बहुत ही खतरनाक है, किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होता, बट आपका जो सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर है, एटलीस्ट रेडी टू यूज घर में पड़ा हुआ है, उसके अंदर 40% वाटर मिला और उसका स्प्रे कर दें तो इससे चला जाएगा। Somebody has asked about rodents like rats and bandicoots. Like you told, traps. हाँ, you have ट्रैप्स इज बेटर। अदरवाइज आजकल रैट्स के लिए तो वो भी आ गया है, वो एक गम स्टिक गम जो आ जाता है उसके लिए, लेकिन उसके लिए छोटे रैट्स हैं तो ठीक है, बड़ा वाला है तो फिर वो काबू नहीं आता, वो तो उसको भी क्रॉस करके निकल जाता है। Yes. तो माउस ट्रैपर जो है वो बेस्ट। माउस ट्रैपर लगाइए, माउस ट्रैपर लगाएंगे, वहां से काबू करके उसको मल्टीप्लाई होने से पहले ही हटा। नहीं मल्टीप्लाई हो गया तो फिर आपके घर में बहुत सारी बीमारियां लेके आएगा। नुकसान के साथ साथ बीमारी, उसके जो एक्सक्रीटा है ना, वो बहुत बीमारी फैलती है। उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और ये सब चीजें हैं, तो वो तो पता लगता नहीं कि हमारे कहाँ से वो रात को निकल गया, किधर से कहाँ चल के गया, कहाँ एक्सक्रीटा किया, वो नहीं पता लगता, वो सबसे खतरनाक। तो उसके लिए माउस ट्रैपर तुरंत लगाना चाहिए। हाँ, कॉकरोच के लिए, जो कॉकरोच की समस्या है घरों में, बहुत आपके ट्रैप से निकल करके, यहाँ से निकल करके आता है, तो उसके लिए आप याद दवाई लिख लें। जो हमें ट्रैप्स हैं हमारे, उन ट्रैप्स के अंदर साल में 2 बार आपको ये दवाई डालनी है। आपके घर में कॉकरोच कभी नहीं आएगी, कॉकरोच मक्खी वगैरह जो अंदर से आती है वो बिल्कुल नहीं। उसके लिखे प्रोफेक्स सुपर एक दवाई आती है, या फिर रोगोर, ROGOR रोगोर, ये 2 दवाइयां ऐसी हैं। या टाटा की टस्कोर भी ले सकते हैं, उसको आप 250 ml की या आधा लीटर की लेकर के हर ट्रैप में, जैसे अभी एक ब्रीडिंग टाइम है, इस टाइम एक बार अभी डाल दें और एक बार जब बरसातें चल रही होती हैं उस टाइम डाल दें। ये 2 बार डाल दें, वो इंक्रीज नहीं होगी, उनकी जो ब्रीडिंग है वो नहीं होगी। अभी ब्रीडिंग टाइम है सभी का, तो इस टाइम आप ट्रैप्स में, सभी ट्रैप्स के अंदर एक बार डाल दें और रात को डाल दें, या फिर आप घर में नहीं है तो मॉर्निंग में डाल के अपना चले गए और शाम तक जो है वो सारा गैस बन के जितने भी ट्रैप्स के अंदर, नाली के अंदर आपके था, वो सब खत्म हो जाएगा, आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। अदरवाइज जो कॉकरोच की समस्या है वो काफी घरों में देखी गई है, बहुत परेशान रहते हैं। तो साल में 2 बार करिए सिर्फ आप, 6 मंथ के गैप पे। So thank you, sir. If anybody has any questions or any aspects of urban gardening you want to ask, you can ask. He has both ornamental garden, flowering plants, as well as some foliage plants also, and of course, vegetable gardens also he has. I have a question, Shobha. Yeah, you ask, sir. How does a beginner who starts the terrace gardening, how does a gardener know which are the plants which has to be in shade, which has to be in sunlight? Because I started the garden and I had many plants,
not knowing which plant needs shade, which plant has to be shifted into the shade in during which months. I have lost many plants. So that is very disheartening and discouraging also. यस अभी मैंने where we यही get this? यही डिस्कस किया कि जब डिस्करेज होना तो लाजमी है, जब आप पौधे कॉस्टली पौधे प्लांट्स बाय करते हैं और वो चला जाता है आपका, तो डिस्करेज होना बिल्कुल सही है आपकी बात। बट उसके लिए क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता है। और सीखने के लिए हमारा चैनल है यूट्यूब पे, समीर सिंह गार्डन। उसमें देखिए कि हर प्लांट के बारे में बताया है, किसको कितना पानी चाहिए। जैसे इंडोर प्लांट्स हैं, तो इंडोर प्लांट्स में हम क्या करते हैं, नॉर्मली बाहर के प्लांट्स की तरफ पानी वाटर का डाल देते हैं, उससे वो प्लांट मरता है। जब इंडोर में है तो इवेपोरेशन उसका नहीं हो रहा है, धूप नहीं लग रही है, एयर ज्यादा नहीं है फ्लो, तो वो इवेपोरेशन ना होने की वजह से पानी हमें कम से कम उसमें डालना है। और कुछ सेक्युलेंट टाइप के प्लांट्स हैं जिसमें अगर 5 दिन 7 दिन 10 दिन पानी नहीं डालेंगे तो वो मरेगा नहीं, बट अगर एक्स्ट्रा पानी हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। I think, as he said, with Thank you, sir. Thank experience, you. with experience, you will know that if you think that it is shriveling or drying, immediately shift to the place and see if it is before it dies off completely. You may try and shift it at a different place and see if you have kept it in the full sun. Most of the plants, it's best to avoid the late afternoon sun or the midday sun. So up till 10, 11 o'clock, they Yes. will do well. Between Yes. 11 to 2, स्पेशली इन समर डेज। समर Yes. डेज मई जून मंथ में क्या है, जैसे आपके एरिका पाम है, क्रोटोन्स हैं, इतने अच्छे क्रोटोन्स होते हैं, बट मोस्टली लोगों का अभी या सीवियर विंटर में मरता है। तो रीजन क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि प्लांट्स को अंदर रखा हुआ है, इनसाइड इंडोर प्लांट है, बट उसको ये सजेस्ट किया जाता है समटाइम जो है सनलाइट में रखना है आपने 1 वीक के लिए। तो सनलाइट कितना देना है, यहीं पे हम मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक ये होता है, हम होल डे सनलाइट में छोड़ देते हैं। एक प्लांट जो हमारे 10 दिन से 15 दिन से अंदर था, शेडी एरिया में था, हार्श सनलाइट में फुल डेज के लिए छोड़ देते हैं, तो वो प्लांट डाई होना ही होना है। तो उसमें केस में क्या करना है, सनलाइट का मीन्स ये है कि मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की सनलाइट देनी है उसको, इसके बाद की नहीं देनी है। हार्श सनलाइट हो जाएगा इसके बाद, तो प्लांट जो अंदर छाए में था वो 1-2 घंटे की धूप तो ठीक है उसके लिए, बट होल डे का जो सनलाइट है उसको नहीं चाहिए। तो इस केस में प्लांट आपका मरता है। तो बिल्कुल एकदम सनलाइट में पूरे दिन के लिए मत रखिए, 2 से 3 घंटे का सनलाइट। या एरिका पाम वगैरह है, कोई विंडो सिल है जो अपना उसके आसपास रखेंगे तो सनलाइट मिले जस्ट उतने, मतलब डायरेक्ट सन रेज नहीं, सनलाइट मिले उतना भी बहुत है। so if nobody has any more questions, can we finish it here and thank Mr. Ram Vilas ji for his insightful talk and sharing his experiences. Like I said, he's a fund of knowledge, and 1 hour is just not enough. Probably that is why he thought, let me start off and see how it goes. And if you have any specific, maybe we can invite him once more. Thank you, sir. Thank you once again. ओके, वेलकम मैम, थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए।